So today we're going to discuss about this case Gundaji Satwaji Shinde versus Ramchandra Bikaji Joshi. तो हुआ क्या था इस केस में? So the first thing that happened in this case was there was an appeal by the plaintiff for a specific performance of contract that was laid down in on 15 December 1965. काफी पुराना केस है. अपील जो प्लेंटिफ ने लगाई थी वो 45 एकर्स ऑफ लैंड के अराउंड थी जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड थी. सो उस 45 एकर्स ऑफ लैंड के लिए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि दे विल हैव अ कंसिडरेशन ऑफ 42,000 रुपीज. उस 42,000 रुपीज में से अर्नेस्ट मनी जो था वो 5,000 रुपए दिया गया. ठीक है, ओके. द पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल वाज 6 months, and that is where our cause of action arises. Okay. Another thing that happened was the trial court dismissed the plaintiff first appeal, that was 117 around 68, was also dismissed by Bombay High Court. But this is very important. Plaintiff claimed specific performance of contract that was dated 15 December 1965, plus there was a supplementary agreement on 26 April 1966, and he lodged a suit. Okay. So ABD I have written here is because ABD is arguments by defendant, and that is why so the defendant resisted this suit and contended that it was a subject matter and contract was covered by the provisions of and this contract was covered by the provisions of Bombay Tenancy and Agricultural Land Act. And plaintiff, because plaintiff he said, the defendant said कि plaintiff कोई एग्रीकल्चरिस्ट ही नहीं है. टेनेंसी एक्ट के अंदर सेक्शन 63 के अंदर he should have been an agriculturist. तो डिफेंडेंट सेड कि वो एग्रीकल्चरिस्ट ही नहीं है. अगर एग्रीकल्चरिस्ट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगता ही नहीं है उसके ऊपर. ठीक है. Then we see agreement was contrary to the provisions of Tenancy Act, hence cannot be specifically enforced. Yes. But then arguments by plaintiff were that plaintiff sought to repeal the contentions by producing certificate EXT 78. ठीक है, मतलब देखो हुआ क्या. प्लेंटिफ ने कहा कि मैं भैया हम तो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, हम इस एक्ट के अंदर आते हैं. कौन सा एक्ट? टेनेंसी एक्ट. ठीक है. पर डिफेंडेंट ने कहा नहीं, आप एग्रीकल्चरिस्ट ही नहीं हो और आप इस एक्ट के अंदर आते ही नहीं हो. तो एग्रीकल्चरिस्ट ने कहा कि ठीक है जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इसके अंदर आते ही नहीं तो हमें EXT 78 ले आते हैं मामलतदार से. मामलतदार के पास अथॉरिटी है कि कौन एग्रीकल्चरिस्ट होगा और कौन नहीं होगा. तो उसने कहा कि हम ले आते हैं. EXT 78 सर्टिफाई करेगा कि प्लेंटिफ वाज एग्रीकल्चरल लेबर. ओके. एंड प्लेंटिफ सेड कि अगर हम जब सर्टिफिकेट ले आएंगे तो जो बार है सेक्शन 68 के ऊपर वो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होगी. बात खत्म. वेरी गुड आर्ग्यूमेंट, इजंट इट? ठीक है. If the court doesn't take note of EXT 78, an issue on pleading will arise whether plaintiff is an agriculturist or not. And combined reading of section 78A under section 85 and under section 85A, issue will have to be referred to Mamlatdar court for decision, and civil court have no jurisdiction to decide the issue. By trial court, these are the two issues that were formed. Let's see what were those issues. Question number 1. Whether plaintiff was an agriculturist? No. And second, and the trial court answered no. And the second was whether trial court have jurisdiction to try the suit? Answer was yes, as being an incidental and subsidiary issue. भाई जनाब देखो, ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो एग्रीकल्चरिस्ट वाला क्वेश्चन है ये हमारे से एक इंसिडेंटल इशू है, एक सब्सिडरी इशू है. जब हम मेन इशू को डील करेंगे तो हम सब्सिडरी इशू को भी डील करेंगे जनाब. तो करा उन्होंने. ठीक है. इशू पर ये बात प्लेंटिफ को अच्छी नहीं लगी कि भाई तुम सिविल कोर्ट क्यों कर रही है उस चीज को डिसाइड करने का काम तो मामलतदार का है. और मामलतदार से प्लेंटिफ जो है वो ऑलरेडी एक EXT 78 ले आया है, जैसे हमने देखा है ना. देखो यहाँ EXT 78 वो ले आए हैं, पर ये बात प्लेंटिफ को अच्छी नहीं लगी.
तो वो कहाँ गए, वो हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट ने भी वही बातें माननी कि नहीं जी, इंसिडेंटल इशू है और उसमें ट्रायल कोर्ट का राइट है उसको डिसाइड करने का, तो वो करेगी। ठीक है, पर ये बातें फिर भी प्लेंटिफ को सही नहीं लगी। अब देखते हैं कि क्यों। ठीक है, रेलेवेंट सेक्शंस अंडर दिस केस, ये देखने से पहले कि क्या इश्यूज हैं क्या नहीं है, हमें ये जो रेलेवेंट सेक्शंस है वो हमें बहुत ध्यान से देख लेना चाहिए। ठीक है, अंडर सेक्शन 2/2 ऑफ टेनेंसी एक्ट defines agriculturist to mean a person who cultivates land personally. This expression land is defined under section 2/8 to mean a land which is used for agriculture purpose or which is so used but is left fallow and includes the site of farm building appertaining to such land, and for purposes of this section, including under section 63, 64 and 84C, the sites of dwelling houses occupied by agriculturists, agricultural laborers or artisans and land appertainants to such dwelling houses. And second, the site of structure used by agriculturists for allied pursuits. Under section 63, ठीक है, ये भी ध्यान से देखिए, forbids transfer of agricultural land to non-agriculture is read as under section 63/1, same as provided in this act. No sale, including sale in execution of a decree of a civil court or recovery of arrears of land revenue or for sums recoverable as arrears of land revenue, gift, exchange or lease of any land or interest therein, or no mortgage of any land or interest therein in which possession of mortgage property is delivered to mortgagee shall be valid in favor of a person who is not an agriculturist. See, this is very important. Who is not an agriculturist, and who being an agriculturist will after such a sale, gift, exchange, lease or mortgage hold land exceeding to two-thirds of the ceiling of area determined under Maharashtra Agriculture Lands and Ceilings Holdings Act 1961, or who is not an agricultural civil, provided that the collector or an officer authorized by the state government in this behalf may grant permission of such sale, gift, exchange, lease, mortgage, and on such condition may be prescribed. Now see, under section 17. Under section 17 defines duty and prescribes functions of Mamlatdar. Who is Mamlatdar? It is a very important question in this whole game. You know कि एक प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ट्रायल कोर्ट के पास गया कि जनाब ये जो हमारा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है इसको एग्जीक्यूट कराइए। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि आप तो एग्रीकल मतलब वहां पे डिफेंडेंट ने कहा कि प्लेंटिफ एग्रीकल्चरिस्ट ही नहीं है तो ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, फिर ट्रायल कोर्ट ने कहा कि इस पूरे केस में दो इशू है कि पहला कि ये जो प्लेंटिफ है ये एग्रीकल्चरिस्ट है कि नहीं है। इसके जवाब में प्लेंटिफ ने कहा कि हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं कि नहीं है ये तो हमें मामलतदार बताएगा, आप कौन हो बताने वाले। तो वो मामलतदार के पास गए, पर ट्रायल कोर्ट ने कहा नहीं, आप एग्रीकल्चरिस्ट हो या नहीं हो ये हम ही डिसाइड करेंगे, कोई और पार्टी डिसाइड नहीं करेगी। यहाँ प्लेंटिफ भड़क गया, प्लेंटिफ फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट की बात मानी तो हमें सुप्रीम कोर्ट गए। पर सुप्रीम कोर्ट में ये अंडर सेक्शन 17 देखो, 70 के अराउंड मामलतदार की पावर क्या है। अंडर सेक्शन 70 में मामलतदार की पावर्स हैं टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज एन एग्रीकल्चरिस्ट, टू इश्यू अ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 84A and decide under section 84B and under section 84C whether transfer or acquisition of land is invalid and to dispose of the land as provided under section 84C. Now see, very important, under section 85. Under section 85 bars jurisdiction of civil court to decide certain issue, and under section 85A provides for reference of issues required to be decided by the Tenancy Act to the competent authority. See this, very important, set up under Tenancy Act. ठीक है, under section 85 no civil court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question including a question whether a person is or was at any time in the past a tenant or whether any such tenant is or should be deemed to have purchased from his landlord the land held by him, which is by under this act required to be settled, decided or dealt with by Mamlatdar or tribunal or manager, the collector or the Maharashtra Revenue Tribunal in the revision of the state government and exercise of the power of control. No order of Mamlatdar, the tribunal, collector or Maharashtra Revenue Tribunal or the state government made under this shall be questioned in any civil or criminal court. ठीक है, अब ये तो मैंने आपको थोड़े फैक्ट्स बताए।
फैक्ट्स इस केस के सिंपल हैं, बहुत ही इजी हैं, शांति से सोचा जाए सिर्फ इतना से है। एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अच्छा इसको मत देखो, ठीक है। हमारा एक वेरी सिंपल टू से, एक प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ कि जनाब ये हमारी 45 एकड़ की लैंड है, इसको हम 42,000 रुपीज में आपस में खरीद लेंगे, और 5,000 रुपए प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को अर्नेस्ट मनी के तौर पे दे दी। उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, प्लेंटिफ ने कहा कि नहीं जी, हम तो हमें तो पूरे के पूरे पैसे चाहिए, नहीं या फिर हमें लैंड दो। तो लैंड देने की जहां बात आई वहां डिफेंडेंट मुकर गया, गए ट्रायल कोर्ट में, प्लेंटिफ ने अपनी अपील लगाई कि ये जो हमारा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है ये पास होना ही होना चाहिए, इसे एग्जीक्यूट कराओ जनाब। उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप, डिफेंडेंट ने कहा कि एग्रीकल्चरिस्ट ही नहीं है, इसीलिए ये ट्रायल कोर्ट में आए, मतलब ट्रायल कोर्ट के पास पावर है कि एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, आप ये डिफाइन करो, ठीक है। ये हमारे बेसिक फैक्ट्स है। अब ट्रायल कोर्ट ने कर दिया मना प्लेंटिफ को कि नहीं जनाब, आप एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हो। प्लेंटिफ जो है वो हाई कोर्ट गया कि हम तो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, हमें ये रिलीफ मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी इन्हें कर दिया मना, ठीक है। अब आगे की कहानी होती है यहाँ से शुरू, एपेक्स कोर्ट में मामला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या हुआ ये हम देखते हैं, तो ठीक है, ओके। अब जरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो हम देख लेते हैं, वो है सेक्शन 85A, ठीक है। In any suit instituted in civil court involves any issues which are required to be settled, decided or dealt with by any authority competent to settle, decide or deal with such issues under this act, hereinafter referred to as competent authority. Civil court shall stay the suit and refer such issues to any competent authority for determination. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सी द कीवर्ड, आप हमेशा मतलब जब भी लॉ पढ़े, ठीक है, मैं एक लॉयर हूँ, एज अ फ्रेंड आई एम टेलिंग यू ऑलवेज फोकस ऑन द कीवर्ड्स, हियर द कीवर्ड इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। On receipt of such reference from the civil court, the competent authority shall deal with and decide such issues in accordance with the provisions of this act and communicate its decision back to civil court. ओके, मतलब सिविल कोर्ट से जो भी डिस्प्यूट होगा वो इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास आएगा, और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होगी वो इस इशू को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिसाइड करके वो वापस सिविल कोर्ट के पास भेज देगी। ओके, नाउ वी सी फर्दर, such court shall thereupon dispose of the suit in accordance with procedure applicable here to explanation. Explanation also, let's see. For the purpose of this section, a civil court shall include a Mamlatdar court. Okay, let's see further. So what happened? I've just made a brief diagram. There was a plaintiff and there was a cause of action. His specific contract was not executed. So he went to सिविल कोर्ट की जनाब हमारी मदद कीजिए, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है फुलफिल नहीं हो रहा, तो क्या करें। सिविल कोर्ट ने ये मैटर जो है वो रेफर कर दिया हमारी अंडर सेक्शन 85A को, ठीक है। ये सेक्शन एनी सेक्शन पेरीमीटर हो सकते हैं, मतलब ये हम जो केस देख रहे हैं, ठीक है, ये केस हम टीनेंसी लॉ के अंडर देख रहे हैं, ठीक है, कि एक सिविल कोर्ट है, टीनेंसी एक्ट है, और टीनेंसी एक्ट के अंदर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसका नाम है मामलतदार। पर ऐसे बहुत सारे और भी एक्ट्स हैं जिसमें मामलतदार के अलावा और कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो सिविल कोर्ट, कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं सिविल कोर्ट के पार, उनका एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन लेजिस्लेचर क्या करती है, वो डेलीगेट कर देती है किसी और अथॉरिटी को कि आप देख लो इस मैटर में क्या हो रहा है, जिससे सिविल कोर्ट का थोड़ा बर्डन कम हो जाए। इसी वजह से सिविल कोर्ट ने मैटर अंडर सेक्शन 85A में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि इस केस में मामलतदार है, उसको रेफर किया। मामलतदार ने वो इशू डिसाइड करके वापस सिविल कोर्ट को भेजना था, यही था मामला, ठीक है, पर ये हुआ नहीं, ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट है हमारी एपेक्स कोर्ट, उसने नोट किया द फोकल पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी इज अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इशू अराइजेस वेदर plaintiff is an agriculturist or not. Would the civil court have jurisdiction to decide the issue, or
सिविल कोर्ट will have to refer the issue under section 85A to मामलतदार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ये सबसे बड़ा इशू है कि जो सिविल कोर्ट है वो इस मैटर को मामलतदार की कोर्ट में रेफर करेगी कि नहीं करेगी, बस ये एक मेन है। ठीक है, under section 78 constitute mamlatdar as a forum for deciding whether a person is an agriculturist or not। सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला सेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है जी। सेक्शन में मामलतदार की क्या पावर्स हैं वो डिफाइन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो वर्ड जो है ये एग्रीकल्चरिस्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब लड़ाई पूरे इस गुंडा जी सतवाजी शिंदे वाले केस में क्या है कि ये जो एग्रीकल्चरिस्ट है इस वर्ड को डिफाइन कौन करेगा? हाँ जी, डिफाइन। ठीक है, ये मामलतदार की कोर्ट करेगी कि ये सिविल कोर्ट करेगी? ये सिविल कोर्ट वर्सेस मामलतदार की कोर्ट की ही सारी लड़ाई है इस केस में। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज अ सेटल्ड लॉ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इट इज अ सेटल्ड लॉ दैट द एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज नॉट readily inferred, but that exclusion must be explicitly expressed and clearly intended। अगर ये जो एक्सक्लूजन है कि भाई हाँ सिविल कोर्ट ये जुरिडिक्शन को ट्राई नहीं करेगी, ये मामलतदार करेगी, तो ये जो डिस्टिंक्शन है सिविल कोर्ट और मामलतदार की कोर्ट के बीच में ये बहुत बहुत क्लियर होनी चाहिए, तभी माना जाएगा। जितना क्लियर उतना ही माना जाएगा, अगर क्लियर नहीं है तो ये माना नहीं जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने रूल बनाया। आगे देखो, अब सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई रेशियो दे रही होती है बड़े केस में तो वो और छोटे छोटे या और सुप्रीम कोर्ट की जो केस होते हैं उनके रेशियो को भी देखती हुई ही डिसीजन देती है। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया, एक सिमिलर केस था ढूंढी टुकाराम माली वर्सेस डांगो पिराजी अगलाले। ठीक है, इसी केस की वजह से लेजिस्लेचर ने अंडर सेक्शन 85A इस टीनेंसी एक्ट के अंदर डाला था। ठीक है, इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा? बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा सिविल सूट शुड बी स्टेड एंड पार्टीज शुड बी रेफर्ड टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर टीनेंसी एक्ट। सच अ डिसीजन विल बी बाइंडिंग ऑन सिविल कोर्ट। And combined reading of 70, 85 and 85A says that the rival contentions between parties which is required to be settled, decided or dealt by a competent authority plus to stop multiplicity of jurisdiction। मान लो सिविल कोर्ट भी उसको ट्राई कर रही है, मामलतदार कोर्ट भी उसको ट्राई कर रही है, तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुरिस्डिक्शन को स्टॉप करने के लिए अंडर सेक्शन 85(2) बनाया गया। एक तो हमारा अंडर सेक्शन 85A था कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डील करेगी, अब एक ये सेक्शन है अंडर सेक्शन 85(2). ठीक है, नो ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल बी क्वेश्चन इन सिविल कोर्ट। नो ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर मामलतदार ने एक बार डिसाइड कर दिया तो सिविल कोर्ट के पास कोई राइट नहीं है उस केस को दोबारा डिसाइड करने का। ठीक है, तो एपेक्स कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है दे राइट टू ट्रांसलेट all of this जो भी अभी तक हम बोल रहे हैं into action is that civil court under section 85A refers it to मामलतदार। ठीक है, plaintiff not agriculturist, whether plaintiff is an agriculturist or not, ये डिसाइड करने के बाद मामलतदार आगे भेजेगा। अगर मामलतदार डिसाइड करता है कि प्लेंटिफ एग्रीकल्चरिस्ट है ही नहीं तो वो लैंड परचेज कर ही नहीं पाएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो एनफोर्स हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये है बात। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस रेफर किया, भीमाजी शंकर वर्सेस दुंगप्पा विथप्पा अंडर सेक्शन 85A oust jurisdiction of civil court not in respect of civil suit but in respect of questions and issues arising therein। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेक्शन है मतलब 85A, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जो छोटे छोटे इश्यूज होंगे या क्वेश्चंस होंगे वो तो मतलब बस उन्हीं उन्हीं के ऊपर सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है,
सिविल सिविल कोर्ट का वैसे जुरिस्डिक्शन खत्म नहीं हो रहा, बस इन इश्यूज और क्वेश्चंस के ऊपर वहां उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया एक और केस, उसका नाम है त्रिम्बक सोपाने गिरमी वर्सेस गंगाराम महाताबे यादव। एंड इन इस केस में ट्रायल कोर्ट केम टू कंक्लूजन वेदर डिफेंडेंट वाज अ प्रोटेक्टेड टीनेज, ठीक है, और नॉट। सच एन इशू वाज ट्रायबल बाय मामलतदार अंडर सेक्शन 70B। तो इस केस में तो पहले ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि आप इस 70B में चले जाओ, मामलतदार डिसाइड करेगा। ठीक है। डोंडी टुकराम माली अफर्म्ड रेशियो लेड डाउन इन त्रिम्बक सोपाने एंड आस्क्ड, ये जो केस था अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को, लेजिस्लेचर को कहा टू मेक स्पेसिफिक प्रोविजन टू प्रोवाइड ट्रांसफर ऑफ फंड टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है। अब फाइनली हम इस पूरे केस का, ये 12 पेज का एक केस है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ से हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन पता लगती है और हम सीपीसी के जुरिस्डिक्शन वाले एक बहुत ही बड़े टॉपिक के अंदर धीरे धीरे घुसते हैं। ये टॉपिक हमारा इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारी फॉरेन जुरिस्डिक्शन आएगी, रेस जुडिकेट आएगा, सब जुडिस आएगा। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन हम इसमें पढ़ेंगे। उससे पहले हम इस केस का, गुंडाजी सतवाजी जोशी के केस का रेशियो देखते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट एक केस के अंदर होता है रेशियो। हमने उसका रेशियो देखा। हम उस देखो, हम कोई आगे जितने भी हम, एज अ लॉयर आई एम टेलिंग एवरीवन, मैं एक लॉयर हूं, मैं आपको सबको बता रहा हूँ। कोई भी केस है, सबसे इम्पोर्टेंट है सेक्शंस। पहले आप उसके सेक्शंस पढ़ो, फिर उन सेक्शंस को देखते देखते बाद में कंटेंशंस होते 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 इसने कुछ, इस पार्टी ने बोला, डिफेंडेंट ने कुछ और बोला, प्लेंटिफ ने कुछ और बोला, डिफेंडेंट ने कुछ और बोला, एंड में आता है हमारा रेशियो। और रेशियो है हमारा सबसे ही इम्पोर्टेंट, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं। अब हम रेशियो देखते हैं। 10 बोथ इन प्रिंसिपल एंड ऑन अथॉरिटी। ठीक है, दोबारा से 10 बोथ इन प्रिंसिपल एंड ऑन अथॉरिटी देर इज नो एस्केप फ्रॉम कंक्लूजन दैट wherein a sued property constituted and cognizable by the civil court upon a contest of issue arises, which is required to be settled, decided or dealt by the competent authority. Again, competent authority under Tenancy Act, the jurisdiction of a civil court to decide, settle or deal with the same is not only ousted but civil court in under statutory obligation to refer the issue to competent authority under Tenancy Act to decide upon the same, and upon the reference being answered back to dispose of the suit in accordance with the decision of the competent authority under Tenancy Act. ये तो क्या रेशियो। अब इसको देख लेते हैं हम एक फ्लो चार्ट के अंदर, हमें क्लियर हो जाएगा। प्लेंटिफ है, सबसे पहले प्लेंटिफ है, उसको कुछ दिक्कत हुई, इस केस में हमारा उसका स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हुआ, उसको वो जमीन मिल नहीं पाई। ठीक है, अभी जमीन नहीं मिली तो क्या हुआ, कॉज ऑफ एक्शन हुआ। कॉज ऑफ एक्शन हुआ तो क्या हुआ, उसने प्लेंट लगाई होगी। प्लेंट लगाई है तो सिविल कोर्ट में गया, सिविल कोर्ट ने अब इशू बनाए होंगे। इशू बनाने में हैव नो ऑप्शन बट टू रेफर इट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इस रेशियो के हिसाब से जो हमने इस केस में देखा कि सिविल कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, दे हैव टू रेफर इट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही डिसाइड करेगी कि कौन एग्रीकल्चरिस्ट है कि नहीं है। इस केस में ये मामलतदार है, मामलतदार ने डिसाइड करके डिसाइडिंग और वापस सिविल कोर्ट को भेज दिया। अब जो भी डिसीजन आया होगा उसके हिसाब से या तो उसको लैंड मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। ठीक है। लास्टली, plaintiff sued for specific contract of sale. If raised a contention by the plaintiff is agriculturist, have to refer it to Mamlatdar as it have exclusive jurisdiction and Mamlatdar is competent authority in this case. ठीक है, तो अब हमने जरा इसको अलग पेज पे आते हैं और इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा जरा से फैक्ट्स होंगे, जरा से हमारे होंगे इश्यूज, और एंड में होगा हमारा रेशियो। ठीक है, हमारे इस केस में फैक्ट्स क्या है, एक लैंड है,
45 एकड़ की 42 के रुपीज दिए, ओबीसी कंसिडरेशन हुई, ठीक है, 5 के रुपीज दिए अर्नेस्ट मनी, बट पूरा नहीं हो पाया वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जो था। अब इश्यूज आए, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि हाँ जी एग्रीकल्चरिस्ट तो आप हो ही नहीं, ठीक है। फिर ये इसी मैटर को लेके गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट की बात को सही कहा। अब जब ये दोनों बातें सही हो गई, ठीक है, जब प्लेंटिव को ना तो यहाँ रिलीफ मिला ना हाई कोर्ट में रिलीफ मिला, तो वो आया एपेक्स कोर्ट में। अब एपेक्स कोर्ट ने एक रेशियो बनाया और उसमें कहा कि भाई देखो, प्लेंटिव है, उसको दिक्कत हुई, गया ट्रायल कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में डिफेंडेंट आया होगा, डिफेंडेंट ने अपनी कंटेंशंस रखी और कहा कि ये तो एग्रीकल्चरिस्ट है ही नहीं। तो फिर इस बात को डिसाइड करने का जो पूरा का पूरा राइट है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को है, अंडर सेक्शन, बताओ कौन सा, 85A। और जब वो डिसाइड कर देगी तो दे विल हैव टू सेंड इट बैक टू ट्रायल कोर्ट, और ट्रायल कोर्ट पे डिसाइड करेगा कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है पिक्चर। तो this is my first video. I'm starting off my YouTube channel. I hope you will like the video. I hope I will improvise on my mistakes and I will make better videos from the next time. So thank you so much. Have a nice day.